मरकज़ दी इंजील 6 अध्याय 33 वचन तो पढ़ांगे और असी अज सीखना हैगा आ कि तरस खाण वाला परमेश्वर। और मैं इनू पढ़ना शुरू करांगा। बहुतों ने उसे जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहाँ पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुँचे। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उस पर तरस खाया, क्योंकि वह उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। हालेलुया। सचमुच प्रभु के प्यारे लोगों, जो असीं शब्दां नूं पढ़दे हां ते कोई नॉर्मल शब्द नहीं जे हैगे। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉੱਪਰ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ, ਇਹਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਆ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਮੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਝੱਲ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਦੁੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਨੋਰਮਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਕੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ। ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੂਨਾ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਟਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਸ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਔਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ? ਉਹ ਪੈਦਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪੈਦਲ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਆ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ? ਅੱਜ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਘਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕਿੱਦਣ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ?
मेरे पति का जीवन कदों बदलेगा, मेरी पत्नी का जीवन कदों बदलेगा, मेरे बच्चों का जीवन कदों बदलेगा। ये सारिया गल्लां च साडे जीवन च भी आ। साडे कोल आ चीज़ां क्यों नहीं हैगियां, साडे कोल वड्डा घर क्यों नहीं हैगा, असीं क्यों नहीं रोज़ वधिया खाना खा सकते। ये सारिया गल्लां साडे जीवन च आउंदियां और असीं इस गल नूं कहने कि परमेश्वर भी साडी नहीं सुनदा हैगा, प्रभु नूं साडे ते तरस नहीं आउंदा हैगा। याद रखो, परमेश्वर तुहाडीआं भावना वेख के नहीं कि तुसीं मूँह बना के बह जाओगे, लो जी प्रभु जी वेखो मेरा मूँह किंडा उतरिया होया है। हो सकदा साडा चेहरा तो बहुत गरीबी वाला दिखे, पर परमेश्वर तुहानूं अंदरों वेखदा हैगा। ये लोग किदों पहुँच गए आ, किदों पहुँच गए आ? पहला किदे तो पहला? प्रभु यीशु मसीह तो पहला पहुंच गए आ, पहला पहुंच गए प्रभु यीशु मसीह तो। और जे साडा टाइम नोट किया जाए तो 10 बजे 11 बजे 12 बजे पहला पहुंच गए। जिन्हों ने प्रभु यीशु मसीह के कोलों कुछ लेना ना, वो पहला पहुंच जाते हैं। लिखा पहला पहुंच गए आ। फिर प्रभु यीशु मसीह नूं तरस आया उन्होंने उपर, वो पहले ही पहुंच गए उस जगह के उपर और जाके इंतजार कर रहे हैं। याद रखो, प्रभु यीशु मसीह के वास्ते पहला पहुंचे जेडे पहुंचते ना, वो चंगियाई जरूर लेंदे है जे। जक्की के बारे पढ़ के वेख्यो, किते लूका 19 अध्याय लिखा 19 तो लैके 10 तक जक्की बारे लिखी सारी स्टोरी। जक्की कदों पहुंचा सी? बाद के पहला जो जक्की ने वेख्या कि भीड़ ज्यादा और ज़्यादा भीड़ होने करके वो प्रभु यीशु मसीह नूं वेख नहीं सकता, और लिखा दौड़िया और दौड़ के गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। वो कदों पहुंच गया? प्रभु यीशु मसीह तो पहला पहुंच गया। और जिहड़ी भीड़ पिछे चलती है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने नहीं वेख्या, फिर किनू वेख्या? पहला जक्की तेरे घर जाना जरूरी है। अज तेरे घर ज़्यादा जाना जरूरी आ, क्योंकि जक्की पहला पहुंचा है। जे तुहानूं समझ आ रही ना, जी नूं समझ लियो, जक्की पहला पहुंचा जां भीड़ पहला पहुंची ही प्रभु यीशु मसीह दे कोल? जे आपां उदां वेखीए संसार के तौर नाल, फिर कौन पहुंचा सी? पहला तो भीड़, जो प्रभु यीशु मसीह चले तो भीड़ नाल सी, पर प्रभु किसी के घर नहीं गए हैगे। पहला भीड़ पहुंची सी, पर प्रभु नूं वेखण वास्ते पहला जक्की पहुंचा सी, भीड़ नहीं। बाकी पहुंचे तो जरूर है, पर उन्हों का ध्यान किते ना किते होर पासे लगा होया। वो अपने जीवन च प्रभु नूं जगह नहीं दे रहे है। और जक्की ने की कीता है? प्रभु के मन नूं, याद रखो, ये चीज़ां चंगियां लगियां। जक्की ने अपना जीवन प्रभु दे हत्थां च उसे समय दे दिता है। और प्रभु यीशु मसीह का तरस पता उत्थे किदां दा सी? असी तो शायद हो सकता है अज असी सानू बपतिस्मा लेना पैंदा, पापां की माफ़ी मंगनी पैंदी हैगी आ, कई दिन तक रोजे रखने पैंदे हैगे आ, असी चर्च में आउने आ, रात रात उठ के प्रार्थना करनियां पैंदियां, कई कुछ करना पैंदा हैगा। पर जक्की सोच के वेखो, ना उन्हें बपतिस्मा लिया, ना वो कदी चर्च गया, ना उन्हें कदी बाइबल नूं वेख्या, कुछ भी नहीं वेख्या, कोई बंदगी नहीं घर च कराई, कुछ नहीं कीता हैगा। ना ही उन्होंने यह कहा कि तू 7 ऐतवार उत्थे आ, तो ना ही 7 वीरवार उन्होंने कहा गया सी। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। पर की वेख्या सोच के वेखो प्रभु यीशु मसीह ने जक्की दे विच, वो किहड़ी गल सी जिहड़ी खुदा दे मन नूं चंगी लगी। और उन्हें कहा जक्की अज तेरे घर रहना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जक्की दे अंदर एक चाहत सी, एक इच्छा सी, अज वेखना आ प्रभु नूं, अज वेखना आ। वेखण ते सारे डे सी सोच के वेखो, पर जक्की दा नज़रिया बिल्कुल अलग सी प्रभु नूं वेखण दा। जक्की दा नज़रिया बिल्कुल अलग सी। अज सोच के वेखो, मैं एक गल नूं करना चाहुंदा हैगा, तुहाडे दोस्त मित्र याद रखो, पता क्यों नहीं बदलते हैगे, क्यों नहीं बदलते हैगे? जिन्नियां भैणां बैठियां तुहाडियां कोई सहेलियां गवांढणां क्यों नहीं बदलदियां? जिन्ने भाई बैठे तुहाडे दोस्त क्यों नहीं बदलते? तुहानूं पता क्यों नहीं बदलते हो? क्यों नहीं बदलते होणगे? क्योंकि उन्होंने तुहाडा जीवन दिखाई दे रहा है कि तुसीं नहीं बदले हैगे। तुहानूं पता जक्की किहदे वेख के बदलिया होऊगा? जक्की कौन हैगा भला? चुंगी लैण वालियां दा की हैगा? सरदार आ। और मत्ती कौन हैगा? मत्ती भी चुंगी लैंदा हैगा।
और जो मत्ती ने काम ते जाना छड़ दिता, प्रभु यीशु मसीह के पिछे चलन डै पिया। हुण बंदा उत्थे नहीं है, उसकी जगह ते कोई भेजना पैना ना। और जक्की ने वेख्या कि बंदा कित्थे गया, उन्हें आख्या वो प्रभु यीशु मसीह के पिछे चलिया गया। उन्हें वेख्या कि इन्नी कमाई करने वाला बंदा, क्योंकि उस समय दे विच उस समय जी रोम की जी सरकार हैगी वो लोगों को पैसे नहीं दे, तनख्वाह नहीं दिंदी हैगी, कोई इदा साढ़े को पक्की तनख्वाह नहीं। उन्होंने इस गल को क्या होंदा सी कि सानू इन्ना पैसा चाहिए, मतलब एक उन्होंने लिख के देता कि सानू एक साल च इन्ना पैसा दे दो और बाकी तुहाडा जिन्ना मर्जी लो। इस करके जक्की कहता ना, जे मैं धोखे ना लिया तो मैं कितना मोड़दा आ, 4 गुणा मोड़दा, क्योंकि चुंगी लैन वाले वध लेंदे हुंदे सी, वो टैक्स वध लोगों को लै रहे सी। और जक्की ने सोचा कि इन्ना पैसा कमाने वाला बंदा क्यों नौकरी छड्ड के चला गया। उन्हें जो वेख्या कि मत्ती का जीवन तो बदल चुक्या, उन्होंने मिलिया होगा ना, उन्होंने पूछया होगा कि भाई तू क्यों नहीं आ रहा। उन्हें कहा कि नहीं मैं सिर्फ प्रभु का हाँ। इस करके उन्हें वेख्या कि वह किहड़ा खुदा आ जिन्हें इदां दे बंदे नूं बदल दिता है। इस चीज़ नूं वेख के, मत्ती का जीवन वेख के याद रखो, प्रभु का एक होर बेटा जक्की भी बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। ये याद रखो, सब तो पहला जे तुहाडा जीवन बदलेगा तो तुहाडे गवांढी भी बदलणगे, तुहाडे दोस्त मित्र सब बदल जाणगे। अज घर जाके इस चीज़ नूं सोचना जरूर, मनन जरूर करना, जरूर सोचना आ कि मैं बदल गया। जे तुसीं नहीं बदले तो तुहाडे अल वेख के कोई भी नहीं बदलेगा। हालेलुया। पर मैं विश्वास करदा कि तुसीं अपने आप नूं बदलोगे। जे तुसीं चाहुंदे आ तुहानूं सब कुछ मिलेगा। याद रखो, वो परमेश्वर तुहानूं सब कुछ देगा, रोटी पानी तो भुखिया नहीं रहन देगा। तुहाडा काम नहीं चलेगा तां भी तुसीं वधिया खाना खा सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। पर जिन्ना चिर जीवन नहीं बदलेगा उन्ना चिर कुछ भी नहीं होएगा। ये संसार दीयां चीज़ां याद रखो तुहानूं परमेश्वर तो पिछे कर देणगीਆਂ। सोच के वेखो इन्हां लोकां दे अंदर किन्नी किन्नी रीझ होगी कि प्रभु यीशु मसीह तो पहला ही पहुँच गए आ। वो याद रखो एक दरिया नूं, एक नदी नूं पार करते हैगे आ, और वो पैदल ही लिखिया भज भज के उत्थे पहुँच गए होने। अज किन्नी रीझ होगी सोच के वेखो। ऐतवार नूं साडे जीवन दे विच असीं कदी भी, मैं पिछली वारी भी कहा सी, शनिवार कदी उठ के तैयारी नहीं करते। और साडे अंदर सोच के वेखो, हर वेले हर संडे नूं एक बहाना जिहड़ा जन्म लैंदा हैगा। असीं हर संडे पाप दे विच जा रहे हैं, ना कि परमेश्वर दे वल। सानू आन के बाद विच ना कई चो अच्छा जी असीं ना इदां फस गए सी, आ हो गया सी, जे हो गया सी, वो हो गया सी। एक नवां बहाना, एक नवां झूठ साडे जीवन च जन्म लैंदा है। पहलां पहुंचण वालियां नूं फिर यह गल कहण दी जरूरत नहीं, पहलां पहुंचण वालियां नूं यह गल आखण दी जरूरत नहीं पैंदी। मिस्र विच चले गए और 400 साल की गुलामी उन्होंने जी सही हैगी आ। उस समय लिखा है कि लोग जिहड़े सी, पढ़ के वेखो, जगह नूं जरूर पढ़ना चाहिए हैगा तुहानूं। कूच की किताब उहदा 3 अध्याय, उहदे 7 वचन च लिखा, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिलचिलाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया। इसलिए मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊँ और उस देश से निकाल कर अच्छे एक बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। और अगे सारे देश से लिखे हुए हैं। प्रभु अज तो ही नहीं, उस समय भी प्रभु नूं तरस आया कि मेरे लोग जिहड़े मिस्र च फसे हुए आ, उन्होंने बाहर कढ़ण वास्ते परमेश्वर ने अपने दास मूसा नूं सुनिया। उत्ते लिखिया कि मैं उन्हां दीयां पीड़ां ते जिहड़ा चित्त लाया, मैं उन्हां दे मन नूं वेखण दुहाइयां नूं सुनिया हैगा, क्योंकि उन्हां दा कोई रखवाला नहीं। उत्थे भी मिस्र दे विच भी याद रखो कोई उन्हां दी राखी करन वाला नहीं। वो जो ये सारे जंगल च पहुँचते है, जो प्रभु कट गए तो बड़े सारे विद्वान इन्होंने उठ खलोते है। पर मिस्र च रहिंदे समय कोई विद्वान नहीं कि जिहड़ा प्रभु की गल कोई कर सके, सिखा सके।
पर वो परमेश्वर, वो तरस खाण वाले परमेश्वर जी याद रखो, वो तरस खाण वाला खुदा है, उन्होंने तरस आता है। बाइबल च बहुत सारिया जगह लिखिया गई प्रभु यीशु मसीह ने अन्निया वेख्या, उन्हें तरस खादा है, उन्हें से लिखा तरस खादा है। वो तरस खाण वाला परमेश्वर आ। चेले कहते कि इन्होंने भेज जाके रोटी की आ मुल खरीदण, पर वो परमेश्वर याद रखो प्रभु यीशु मसीह जो इस जगह के उपर काम करने वाले है, ये कोई नॉर्मल नहीं है। इन्हों इस अध्याय को किते इस पैराग्राफ को नॉर्मल ना समझियो, ये बाइबल की बहुत वड्डी शिक्षा है। क्योंकि जिस नबी का आउण का वादा परमेश्वर ने पुराने नियम च कीता सी, भविष्यता सार उहदे 18 अध्याय दे विच एक नबी के आउण के बारे दस्सिया गया सी। परमेश्वर ने कहा सी कि मैं अपने वर्गा एक नबी जिहड़ा आ की करूँगा, लिखा मैं तुहाडे विचों तुहाडे समान की एक नबी नूं तुहाडे कोल भेजूंगा। एक नबी दे आउण दा जिहड़ा वादा किया गया सी, वो प्रभु यीशु मसीह सी। और यहूदी लोग जिहड़े हैगे सी, वो इस गल ते ये याद रखो, यहूदी परंपरा च लिखिया गया सी कि एक नबी इदां दा आउणा आ जिहड़ा तुहानूं एक बार इदां दा खाना खवाएगा जिहड़ा स्वर्ग तो दिता जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने कित्थों मन्ना बरसाया सी? स्वर्ग तो। और यहूदी लोग इस चीज़ का इंतजार कर रहे सी कि एक नबी इस तरह का आएगा, एक मसीहा आएगा जो इदां दा चमत्कार फिर करेगा। इनू एक नॉर्मल ना समझो कि उदा ही रोटी खवाई हैगी है। एक नबी दे आउण दा ते वादा पूरा होना सी, और प्रभु यीशु मसीह उसे एक वादे नूं, उसे एक भविष्यवाणी नूं उत्थे पूरा कर रहे सी। ये भविष्यवाणी भविष्यता सार 18 अध्याय दे विचों पढ़ लो, 15 वचन तो 15 तो लैके 18 तक। और मैं चाहुंदा जरूर तुसीं पढ़ ही दो तो चंगा हैगा। मैं तुहाडे लई पढ़ ही दिना है, इस चीज़ को जरूर क्लीयर करना चाहुंदा तुहाडे विच। एक भविष्यवाणी सी जिहड़ी परमेश्वर ने पूरी कीती है कि उस जगह के उपर 18 अध्याय दे विच 18 अध्याय दे 15 वचन तो, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान, याद रखो कि लिखा हैगा, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसकी सुनना। परमेश्वर याद रखो इस गल नूं कहंदे हैगे आ कि प्रभु दे वर्गा एक नबी होर थले धरती ते भेजिया जाऊगा। जेड़ा उस काम नूं तुसीं लिखिया उहदी सुनना, और वो जो कुछ कहेगा तुसीं उहदे लई करना। ये तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तुमने हेरोब पहाड़ के पास सभा के दिन परमेश्वर यहोवा से की थी। और ये पढ़ के देख लो केड़ियां बेनतियां उस जगह ते होईयां हैगियां। और की क्या सी मूसा ने उस जगह ते, मुझे ना तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना और ना वो बड़ी आग फिर देखनी पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाऊं। तब यहोवा ने मुझसे कहा, वह जो कुछ कहते हैं ठीक कहते हैं, इसलिए मैं उनके बीच उनके भाइयों में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वो वही उनको कह सुनाएगा। एक भविष्यवाणी इस जगह ते परमेश्वर ने आन के पूरी की थी, क्योंकि ये यहोवा परमेश्वर ने स्वर्ग तो मन्ना बरसाया सी, ते प्रभु यीशु मसीह भी वो एक काम करके लोगों से साबित करना चाहते सी कि वो परमेश्वर, वो यहोवा धरती ते आ चुकिया आ, वो नबी धरती ते आ चुकिया हैगा, वो मसीहा जिहड़ा मैं आ चुकिया हैगा। पर शायद लोगों को उस चीज़ की पहचान नहीं आई और ना ही अज आई हैगी। प्रभु यीशु मसीह हर समय अपने काम नूं जिहड़ा आ वो पूरा करते हैं, वो पूरा करते, पर करते किन्ना लोगों के वास्ते आ, कितना लोगों लिए करते आ, जेड़े पहला पहुँचते आ, जेड़े पहला पहुँचते आ। अज तो तुसीं भी याद रखो, पहला पहुँचना शुरू करो। इन्हां लोगों के अंदर हिम्मत वेखो, हर एक मुसीबत नूं पार करके ये चाहते नहीं सी कोई रुकावट आ जाए। इन्होंने ये नहीं सोचा कि दौड़ के क्यों जाना हैगा, किश्तियां होर लगियां होणगियां, इत्थे सिर्फ इक्को ते नहीं हैगी, इन्हां 'च बैठो चलते हैगे आ। रोग ही करना चाहते आ, वो पहला पहुँचना चाहते आ, बाद नहीं।
ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਇਦ ਉਠਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਆ ਚਾਹੇ ਆਤਮਿਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਾ ਗਵਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਰਚ 'ਚ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਲਿਓ ਬਰਕਤ ਕਿੱਦਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 5-7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋਣੇ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓਗੇ, ਸੋਚ ਕੇ ਕੋਈ ਲੇਟ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੇਟ ਆਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਆ ਰਹੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਸੋਚ ਕੇ ਕੋ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਹਾਂ, ਔਰ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਣ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿਆ, तुम ही उन्हें खाने को दो। प्रभु यीशु मसीह फिर अपने चेलियां नूं ये गल कहंदे कि तुसीं दे दो उन्हां नूं खाण वास्ते। इत्थे चेलियां दा विश्वास परखिया जा रहा। प्रभु यीशु मसीह ने जिहड़ी पावर चेलियां नूं दित्ती सी, तुहानूं पता किहड़ी पावर दित्ती सी प्रभु ने? तुसीं मुर्दियां नूं भी जिंदा कर सकदे आ, लंगड़ियां नूं याद रखो ठीक करो, अन्नियां नूं ठीक करो, सब तरह की पावर दे दी। तो आ पावर नहीं सी हैगी तुसीं रोटी देण दी। हालेलुया, रोटी देण दी पावर नहीं सी हैगी। इन्नी वड्डियां पावरां परमेश्वर ने दे दित्तियां। कहंदे प्रभु जी तुसीं आप ही सचो इन्हां दा, असीं नहीं कुछ कर सकते। प्रभु कहंदा तुसीं दो इन्हां नूं कुछ खाण वास्ते। रोगी कहंदे आ, चेले गल करते है, वो कहते कि इन्हों के वास्ते तो साढ़े को इन्ने पैसे नहीं कि इन्नियां दियां रोटियां खवा दईए असीं। अज पैसा तो बहुत आ, पर रोटियां फिर भी मुल है जी। हालेलुया, पैसा तो बहुत हैगा, पर रोटी फिर भी मुल हैगी जी। चेले नहीं खवा सकते, पर वो जिंदा खुदा याद रखो खवा सकता जी। चर्च में फ्री खाना मिलना जरूरी है। खाने का कोई पैसा ना तुसीं खुदा ने लिया तो ना ही वो याद रखो तुहानूं कहंदा कि तुसीं जिहड़ा आ मुल किसी नूं बेचो। हालेलुया। कई बार ये कुछ ना लोग आण के, मैं ना कुछ लोगों ना सवाल किया, मैं क्या क्यों भी तुसीं क्यों खाना मुल बेचते आ फ्री? कहंदे जी इन्ने लोगों का खाना जिहड़ा उत्थे बनाउणा किहड़ा सौखा है। तो मैं क्या वेचण वास्ते किदां बन जाता है? वेचण लई भी तो उदां ही बनाउणा, उदों किदां बन जाता है? हालेलुया। चेलियां ने प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने की किया? उसने उत्तर दिया, तुम आप ही उन्हें खाने को दो। उसने कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? देखो चेलियां के अंदर कहता ही अपने कोलों मुल लैण के इन्हां नूं खवाइए हुण। हालेलुया। की कर रहे हैगे आ? कहंदे असीं हुण अपने कोलों मुल लैण के खवाइए इन्हां नूं। ऐदां दे तुहानूं अज बथेरे मिल जाणगे। कंटीना वाले चर्च जिहड़े हैगे आ वो परमेश्वर की इच्छा दे विच नहीं जे हैगे। तुहानूं मैं दस दिंदा हैगा जी, जिथे कंटीना बन गईआं ना, तुसीं सोच के देखो कंटीना पता कित्थे बनदियां, कित्थे कित्थे बणीआं हुंदियां। हाँ,
ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣੇ ਕੰਟੀਨ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਕੰਟੀਨ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ, ਲੋਕ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਉੱਥੇ ਮੁੱਲ ਵੇਚੋ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਲੀ ਆ, ਔਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ। ਲੋਕ ਡਿੱਗੀ ਜਾਣ ਤੇ ਆਤਮਾ ਆ, ਔਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਆਵੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਪੈਸੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਖਾਂ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ, ਇਹ ਕੰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। वो कहते असी मुल लिया के खवाइए। उसने कहा जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। जो चेले जेड़े आ वो इस चीज़ तो मुकर गए आ कि असी नहीं खवा सकते लोगों को, हुण साडे च पावर है नहीं आ। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ वेखो हुण रोटियां किन्नियां तुहाडे कोल, मतलब उन्हां कोल नहीं आ, इन्हां कोलों वेख जाके किसी कोलों कुछ हैगा आ। याद रखो लंगर ते कलीसिया के पैसे का लगना, इत्थे भी किहदे पैसे का लगना, किन्ने किहदे कोलों 5 रोटियां और 2 मच्छियां आया, उस समय जो कलीसिया के कोल लंगर तो उन्हां दा लगना। पर जो उन्हां कोलों लैके उन्हां नूं मुल वेची गए थे, हालेलुया, लाउण वाले तो उही आ, पर उन्हां कोलों लैके उन्हां नूं मुल। इत्थे समझ जाना किते ना किते वो तरस खाण वाले ना ते नबी जे और ना उत्थे खुदा का आत्मा हैगा जी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ ताडे विचों वेखो किसी दे कोल कुछ हैगा। उन्होंने मालूम करके कहा 5 और 2 मछली भी। उन्होंने कहा कि साडे कोल 5 रोटियां ते 2 की आ मछलियां हैगियां। ये 5 और 2 7 का मतलब तुहानूं पता है, इत्थे प्रभु यीशु मसीह कोई नॉर्मल गल नहीं कर रहे। एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये तो कितने दोबारे असीं गल कर सकते हैं। ये 5 और 2 7 सही जी पहली बात हैगी आ, वो 7 का मतलब तुहानूं पता की हैगा? की हैगा 7 का मतलब? संपूर्णताई। 7 दिन दे विच 7 दिनां दे विच परमेश्वर ने सब कुछ बना के 7वें दिन की कीता आ? विश्राम कीता आ। और 7वां दिन की आ? पवित्र दिन हैगा। किते प्रकाश की पोथी पढ़ियो 7 तारे 7 आत्मा। प्रभु यीशु मसीह हर गल से 7 नूं लैके आउंदे हैगे आ। और ये की हैगा आ? ये 5 जिहड़ियां 5 रोटियां याद रखो, इन्हां नूं प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ा वड्डा ते भेत हैगा आ। ये बाइबल दीयां 5 किताबां जिन्हों 5 ग्रंथ भी कहा जाता हैगा। 5 तरह की याद रखो सेवकाई। और ये सोचना है कि जिहड़ी सेवकाई असीं किहड़ी सेवकाई दे विच हैगे आ, असीं किहड़ी सेवकाई दे विच हैगे इस टाइम ते। और 2 तरह दी याद रखो, 2 अलग अलग जातियां की गल हैगी इस जगह के उपर। ये 2 मछलियां, मछली याद रखो बरकत हैगी आ। इनू तुसीं इस्माइल और इसहाक भी दस सकते हैं। 2 तरह के अलग अलग परमेश्वर उन्होंने उत्थे कर दिता है। बरकत दोवां दे कोल हैगी जी, याद रखो। और पूरी दुनिया दी कौमां इन्हां तो खाण रहीआं हैगियां जी। ये यहूदा और इजराइल के बारे भी तुसीं गल कर सकते हो, अलग अलग है। हालेलुया। ये याद रखो, ये 5 और 2 7 एवें नहीं हैगा। ये परमेश्वर की संपूर्णताई नूं दिखाउंदा है। जो प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने कहा, याद रखो, सोच के वेखो, वो अपने आप ही वो बच्चा घरों ये नहीं कह के आएगा कि मैनूं 5 ही रोटियां दो, 2 ही मच्छियां दो। कह के नहीं आया हैगा। पर याद रखो, उस खुदा की योजना आ, उहदे कोल होणियां ही होणियां सी। सिर्फ वो अपनी मर्जी ना लेके आया, वो परमेश्वर की मर्जी आ कि अज उत्थे एक बहुत वड्डा जिहड़ा एक बहुत वड्डा काम करना हैगा, उहदे वास्ते इन्ना ही जरूरी हैगा।
हालेलुया। उन्होंने क्या किया हैगा, साढ़े कोल 5 रोटियां और 2 किया मच्छियाँ। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास में पांति पांति बिठा दो। प्रभु यीशु मसीह ने जो उन्होंने कोलों सोच के 5 रोटियां और 2 मच्छियां लै लिया और की किया उन्होंने, इन्हों लाइना च बिठा दो। जे बरकत लेनी लाइना च ब्याह करो। मैं बड़ी बारी क्या है, असी फिर इधर उधर टेढ़े मेढ़े चलते हैं। आप वेख लो हुणे आप ही किदां बैठे हैं। असी पता लाइना च खाण वेले सिर्फ होंगे हैं, जो आत्मिक बरकत लैनी उदों असीं टेढ़े मेढ़े हैं। और टेढ़े मेढ़े पता किन्हां क्या गया जे, टेढ़े मेढ़े कौन चलते हैं? हाँ कौन चलते हैं? सप दे बच्चे। वचन च लिखा है ना, सप दे बच्चे तुहानूं किहने दस्सिया आ? टेढ़े मेढ़े वो चलते, सीधे हो के ब्याह करो। जे चाहुंदे ना प्रभु तुहाडे नाल सीधा रहे तो सब तो पहला आप सीधे हो जाओ। अपने नाल दे दसो, जे चाहुंदे प्रभु सीधा रहे तो पहला आप सीधे हो जाओ। हालेलुया। याद रखो इस जगह के उपर जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं कहा कि इन्हां तुसीं लाइनां विच बिठा दिओ, और की होया उस समय सोच के वेखो, चेले जिहड़े आ वो बड़ा सोचते होणगे, उन्हां दे दिमाग 'च कई सवाल पैदा हो गए होणगे कि 5 रोटियां 2 मच्छियां हैगियां आ और प्रभु यीशु मसीह इन्नी भीड़ नूं किदां खवाउणगे। कि उन्हां दे दिमाग 'च सवाल नहीं आए होणगे? उन्होंने दिमाग जे सवाल आया होगा। इंद्रियास सोचता होगा उस समय खड़ा होया इस गल नूं, ये किदां हो सकता है कि 5 रोटियां 2 मच्छियां ना इन्ने लोगों नूं खवाउणा है। असीं भी कदी कदी डरते हैं ना, जिदन तुहाडे घर च कोई विआह का प्रोग्राम है, कोई बंदगी हुंदी आ, असीं भी डरते हुंदे आ खाना किते मुक्क ही ना जावे, आ चीज़ ना घट जे, आ ना घट जे, सानू फिक्र लगा रहिंदा हैगा। ये नहीं कदी सोचा कि बंदगी किहदी करवाई हैगी आ, तुहाडे घर च आया कौन हैगा आ। अज जिहदा वचन तुहाडे घर पढ़िया जाना वो कदी खत्म नहीं होण देगा। और कदी कदी साडे दिमाग 'च सवाल ही तुरे रहणगे, बार बार जाके पतीला ढक्कन हैगा अजे भी। सच्ची गल साडे मन 'च सवाल डर पै जांदा है, घर बंदगी कराई हैगी आ, अंदर किते मुक्क ही ना जावे। पर जेड़े खुदा दे सामने तुसीं बैठे हैगे वो खत्म नहीं होण दिंदा। उन्हें ते विधवा दे घर दे विच दो विधवा नूं याद रखो कि खुदा ने बरकत दित्ती। वो परमेश्वर जीवत आ। ये सानू चिंता लग जाती हैगी आ, पर वचन च लिखिया अपनी सारी चिंता मेरे ते छड्ड दिओ, मैनू तुहाडा फिक्र आ। जिदन तुसीं अपने घर च बंदगी कराई ना, वो थोड़ा भी क्यों नहीं हैगा, वो मेरा प्रभु मेरा यीशु याद रखो उन्होंने ज़्यादा करने की पावर रखता जे। बस दुआ करके इनू की करो, वंडते जाओ। चेले सोचन डे सी ये 5 रोटियां 2 मच्छियां इन्ने लोगों च किद्दां वंडांगे। वो आपस गल्लां करते होणगे। इंद्रियास पुछदा होगा इनू पतरस किद्दां आऊगा काम, यूहन्ना यार किद्दां करांगे आपां सारे जाने। आपां नूं याद रखो ये तो 5 जणे जे एक दित्ती बनी जानी, बाकी लोगों बेइज्जती हो जाऊगी, आपां सब नूं बिठा दांगे, लोग साडे गल पैणगे कि की करन डे तुसीं। उनके दिमाग 'च हज़ारां सवाल घूमन डे होणगे, पर प्रभु यीशु मसीह के दिमाग 'च इक्को सवाल घूमन डिया है ना, इक्को सवाल घूमन डिया कि तुसीं नहीं खवा सके, तुहानूं अधिकार दिता सी, इस्तेमाल नहीं कर सके, देना देना ने सी। इहो दुआ चेले भी कर सकते सी, इहो दुआ चेले भी कर सकते सी, पर दिमाग के ते विश्वास किहड़ी चीज़ उपर आ? पैसों उपर। विश्वास कि उपर आ? कहते असीं 100 दिनार दीआं रोटियां मुल लियाईए, ध्यान दे मुल लगा होया है। अपने हत्थां ते अपनी जुबान ते विश्वास नहीं, ये हाथ किते उपर चुके हुंदे, ये जुबान तो किते बोलिया हुंदा ते प्रभु उदां ही कर देगा। वो करेगा, तुहाडे शब्दां दी प्रभु नूं कदर है। हालेलुया। याद रखो प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने कहा इन्हों की करो, लाइनां 'च बिठा दो, इन्हों हरे हरे घाह ते बिठा दो। यदा मतलब हैगा, याद रखो हरिया हरा घाह सी, मौसम बहुत वधिया सी,
और कोई जंगली स्थान नहीं, एक वधिया जगह होगी जिथे प्रभु यीशु मसीह लैके गए उन्होंने। क्योंकि याद रखो 23 जबूर च की लिखिया है, की लिखिया है, यहोवा मेरा अयाली आ, मैनू किसी चीज दी। और अगे वो किथे बिठाउंदा मैनू, हालेलुया। एक जोरदार ताड़ी उस परमेश्वर के वास्ते। प्रभु यीशु मसीह दस रहे सी कि मैं यहोवा आ, मैं उही अयाली हाँ जिदे बारे तुसी 23 जबूर पढ़ते रहने आ, मैं उही खुदा आ। लेकिन हरी हरी घाह ते सब नू करो बिठा दो, हरे हरे घाह ते बहन लई तैयार हो जाओ। पर तैयार किन्ना ने होना आ, जिहड़े पहलां पहुंचते आ। तुहाडे घर च कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी, पर पहलां पहुंचो, पहलां पहुंचो, वो खुदा तुहाडे घर नूं हरिया भरिया कर देगा। तुहाडे घर च किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। बस ये दिल है ना, जिहड़ा दिल, ये परमेश्वर नूं दे दिओ, ये परमेश्वर नूं दे दिओ। यही सब तो वड्डा धोखेबाज जी, यही बेईमान जी। और की होया आगे, वह 100 और 50 करके पांति में बैठ गए। तब उन 5 रोटियों को 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देकर धन्यवाद किया। याद रखो यहूदी जेडे लोग सी, इन्हां च एक चीज़ बड़ी वड्डी खास हुंदी सी, ये कुछ भी करते सी। जबूर 121 दे विच लिखिया हैगा ना कि मैं अपनी अखां की करांगा, हाँ पहाड़ां वाल चुकांगा। पहाड़ां का मतलब पहाड़ां चों कुछ नहीं मिलना, लोग पहाड़ां वाल भजे जाते अजकल। पहाड़ां चों कुछ नहीं मिलना, पहाड़ां का मतलब पहाड़ थल्ले नूं जांदे कि उपर नूं, किधर नूं हुंदे आ, उपर नूं। पहाड़ां का मतलब की आ, मैं आकाश वाल वेखांगा, उचाई वाल, क्योंकि उपर कौन रहिंदा आ, परमेश्वर रहिंदा आ। मेरी सहायता कित्थों आएगी, तो प्रभु यीशु मसीह यही तो अज भी सिखाते हैं। असीं सोच के देखो, घर च प्रॉब्लम आई, मुसीबत आई, कदी हाथ चुके परमेश्वर के वाल, कदी अखां लाइया परमेश्वर के वाल, कित्थों बरकत आएगी। कदी उठ के बैठे हैं, बंधन अज भी टुट सकते, सब टुट सकते हैं। बस बैठ जाओ जाके परमेश्वर देखे। प्रभु यीशु मसीह ने की किया, लिखा वो रोटियां और मछलियां लिया और स्वर्ग के वाल लिखा की आ, अपने हाथ चुके और धन्यवाद किया, उन्होंने उपर बरकत मंगी। सोच के वेखो, सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां जे। अज तुहाडे घर च हो सकता कुछ भी ना होवे, हर एक चीज़ खत्म हो चुकी होवे, तुहाडे कोल कोई 1 रुपया जेब च ना होवे, पर जे तुसीं अज प्रभु दे अगे बैठ जाने पूरे मन तो, तो वचन च लिखा रात नूं चाहे रोना टिके, दिन चढ़दे नूं की होएगा। तो जय जयकार एवं नहीं जी होनी, इहदे लई की करना पैना आ, बैठना पैना, आग्याकारी करनी पैनी हैगी आ, वचन के उपर ध्यान करना पैना हैगा आ। और जे नहीं कर सकते, याद रखो, तो होना कुछ भी नहीं जे, ये करना पैना है। हो सकता तुहाडे कोल पैसे की कमी, तुहाडे घर च गरीबी आ, प्रॉब्लम आ, बीमारी आ चुकी, कुछ भी हो चुकिया है, चाहे तुहाडा काम बंद आ, तुहाडा पासपोर्ट अगे नहीं वध रहेगा, रुकिया होया है, कुछ भी प्रॉब्लम हैगी आ, उहदा सब तो वड्डा कारण यह हैगा कि असीं प्रभु के अगे बैठे ही नहीं हैगे। बड़ा जरूरी हैगा परमेश्वर के अगे बैठना। अपने तुहाडे बंधन उदों टुटणगे जदों प्रभु के सामने बैठोगे। हर एक बंधन टुटेगा तुहाडे वास्ते, पर टुटेगा कदों, जदों अपने हाथ किधर नूं चुक लोगे और अपनी अखां भी किधर ला लोगे। तुहानूं पता प्रभु यीशु मसीह ने गल क्यों कही हैगी आ भी अपनी अखां पहाड़ां वाल चुकांगा, मतलब संसार ते भरोसा ना रखो, क्योंकि जो उपर अखां दे संसार के लोग नहीं दिखाई देणगे, फिर तुहाडा विश्वास किहदे ते बनेगा, परमेश्वर ते। और जो धरती ते बह के लोकां लई वेखी जाओगे ते परमेश्वर ते भरोसा है ही नहीं, भरोसा धरती के लोगों ते आ। अपना भरोसा, अपना विश्वास परमेश्वर ते बनाओ, अपनी अखां हमेशा स्वर्ग दे वाल रखो। और की लिखिया हैगा,
और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया और वह कि वो लोगों को परोसे, और वह 2 मछलियां भी उनमें बांट दी। याद रखो की लिखा गया, लिखा प्रभु यीशु मसीह तोड़ तोड़ के देंदे गए उन्हां दे विचों, उन्हां ही 5 रोटियां दे विचों और 2 मछलियां दे विचों प्रभु यीशु मसीह तोड़ तोड़ के देंदे गए और वो लोकां दे विच वंडदे गए। तोड़ तोड़ के की गया, प्रभु यीशु मसीह दई गए है। प्रभु के हत्थां दे विच पावर आ, प्रभु के शब्दां दे विच पावर है। पावर है परमेश्वर दे विच। चलो तुसीं प्रार्थना करन बैठदे सोचा करो कि पावर दे अगे बैठे हैं, और पावर दे विचों पावर तुहानूं भी मिल सकती है। एक चुंबक दे नाल एक कोई किल लाया जाए ना, जां पेचकस ला दिता जाए, तो कुछ दिन बाद याद रखो पेचकस के नाल भी की आ, ਉਹਦੇ अंदर भी याद रखो चुंबक का असर आ जाता है। और फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ छोटे छोटे पेज ਜਿਹੜੇ चुक के लाए जाते ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ उस पावर नाल आ कि ਤੁਹਾਡੇ अंदर नहीं आई अजे तक? ਅਸੀਂ उस पावर ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ही नहीं। फिर किद्दां आएगी साडे अंदर वो पावर? इसे करके कुछ काम साडे जीवन च होंदे ही नहीं। पर वो प्रभु करना चाहता जे जरूर, वो तुहानूं सामर्थ देना चाहता है, लैण वास्ते तैयार रहना चाहिए। चेलियां कोल सेम अधिकार हैगा सी, चेलियां कोल सेम अधिकार हैगा सी, वो कर सकते सी सब कुछ। वो भी इन्हां रोटियां नूं वधा के दे सकते सी, मछलियां वधा के दे सकते सी, पर भरोसा किहदे ते हैगा आ? पैसों ते। प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि लियाओ जी मैं चमत्कार ना पैसा बना देना, जिदा अजकल के नबी करते। अजकल ताड़े चमत्कारी पैसा जेबां जा रहा है, मिरकल मनी आ रहा है। प्रभु इदां दे काम नहीं जे करते, तो प्रभु इदां करते हैं। प्रभु ने कहना ठीक आ, जे 100 दियां नहीं आउंदियां मैं हुणे ऐसे टाइम मारदा शक्ति, तो सब की जेब 100 रुपया आना, जाके आपे खा लेंगे, आपे मुल ले लेंगे। पर नहीं किया, क्योंकि बाइबल की जी सेवकाई वो ढोंग की सेवकाई नहीं कि मिरकल मनी लोगों च पैसा आ गया, ये सेवकाई नहीं हैगी। हालेलुया। प्रभु दे याद रखो शब्दों के विच ही पावर आ। ये सोचना चाहिए सानू कि जो एलिया उस विधवा के घर च गया तो उन्हें किन्हूं पैसे दिते जाके, उन्हें प्रार्थना की। जो अलीशा गया उन्हें पैसे दिते जाके विधवा नूं, उन्हां दे घर दे विच की ही उहदे ते ही बरकत मिली है। इसदा मतलब है समझते हैगे आ, चेलियां दे कोल पूरा अधिकार सी उहनूं डबल करन दा, ट्रिपल करन दा, 100 गुणा 1000 गुणा वधाउण दा अधिकार सी। उन्हें अलीशा ने कहा सी ना, जिन्ना चिर तक ये बर्तन जिहड़े आ तेरे खत्म नहीं हुंदे, ये तेल नहीं रुकेगा। वो चेले भी कह सकते सी, जिन्ना चिर 5000 बंदा नहीं रजदा, ये रोटियां की आ नहीं मुक्कण गियां, ये मछियां नहीं मुक्कण गियां। पर उन्होंने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया उस पावर का। वो कह सकते इस गल नूं, ये नहीं मुक्कण गियां, ये खत्म नहीं होगा ना चिर जिन्ना चिर तुसीं नहीं खा के रह सकते। हालेलुया। पर कभी भी याद रखो चेलियां ने भावें जिदा मर्जी 30 रुपये थाली नहीं वेची, उन्होंने अपने कोलों नहीं वेची। अजकल के चेले जिहड़े जरूर वेचते हैगे आ। हालेलुया। और की लिखा, सब खाकर तृप्त हो गए। और लिखा वेखो सारे ही खा गए, की आ रज गए, बिल्कुल रज गए। तुहाडे कोल जो कुछ है हुंदा ना प्रभु दे हत्थां 'च दे दो, फिर तो जे घर दी गरीबी खत्म हो जाएगी, घर दीयां समस्या खत्म हो जाणगियां। असीं नहीं दे सकते इन्हां चीज़ां नूं अपने जीवन दे विचों। और की होया, और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भर उठाई और कुछ मछलियां भी, और जिन्होंने खाई थी वे 5000 पुरुष थे। हुण सोचने वाली गल है कि याद रखो इत्थे किन्नियां रोटियां सी उन्हां दे कोल? सब नूं नहीं सुनी ये गल? किन्नियां रोटियां सी? किन्नियां मछलियां सी? किन्ने लोग खा सकते इस चों? सिर्फ एक बंदा ही। साबे नूं तो भी घट पै जाणियां है ना। हालेलुया। याद रखो 5 रोटियां और 2 मछलियां एक बंदे लिए काफ़ी नहीं है कि है, एक बंदा भी नहीं खा सकता। और वचन च पता की लिखा है? लिखा 12 टोकरियां बच गई। 12 टोकरियां की
बच गई। ये 12 टोकरियां की आ? ये 12 टोकरियां इजराइल दे 12 गोत्र, प्रभु यीशु मसीह दे 12 चेले। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन नूं पूरा कर रहे सी, अपने वचन नूं पूरा कर रहे सी, अपने वचन नूं भविष्यवाणियां पूरीਆਂ कर रहे सी कि मैं आ चुकिया, मैं यहोवा आया। प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ नूं प्रगट कर रहे सी। ये 12 टोकरियां दा बचना कोई याद रखो छोटी गल नहीं सी। हालेलुया। पहलों प्रभु ने दिखाया कि 7 संपूर्ण मैं आ जिन्हें सब कुछ बनाया, और ये 12 गोत्रां और 12 प्रभु यीशु मसीह के चेलियां नूं दर्शाया गया। और याद रखो जे तुसीं ये चारे अंजील पढ़ते, चारे अंजील च जिहड़ी आ कहानी जिहड़ी आ वो लिखी हुई आ। चारां जगह के उपर इस जगह को दिखाया गया कि प्रभु यीशु मसीह ने यह चमत्कार एक जगह नहीं, 2 जगह, एक जगह 4000 लोगों को लिखा खवाया, एक जगह 5000 लोगों को खवाया गया। अलग अलग वो जगह है, एको जगह नहीं हैगी, कई इनू मिक्स करके पढ़ते रहते हैं विच। ये अलग अलग जगह की गल हुई हैगी। प्रभु यीशु मसीह जिहड़े हैगे आ वो हर समय अपने वचन नूं जिहड़े पूरा करते हैगे आ, और इस जगह दे भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन नूं पूरा कीता हैगा। ये जिहड़े आ अलग अलग चारे अंजीलां पढ़ते हैं, जो तुसीं चारे अंजीलां च बड़े अलग अलग तरीके नाल चेलियां ने दस्सण की कोशिश की हैगी आ, अलग अलग तरीके नाल वचन नूं पूरा करन की कोशिश की हैगी आ। असीं इस जगह ते हुणे इस गल नूं पढ़िया हैगा कि उत्थे की होया हैगा कि 5000 सिर्फ की लिखिया आ पुरुष। कई बार असी बड़े हैरान हो जाने, जां लोगों को बाइबल के उपर बड़ा कई ना ये जिन्होंने लैके बहते कि 5000 लिखा, फिर 5000 बंदा सिर्फ लिखा, और कई बार प्रचार करते हैं कि उत्थे 20-25 हज़ार लोग हो सकते हैं। किन्ने हो सकते हैं? असल में उत्थे 20-25 हज़ार लोग है। इत्थे लिखा 5000 कौन आ? गिनती की किताब वो एक अध्याय पढ़ांगे, मैं तुहानूं क्यों इस गल नूं दस रहा है। गिनती की किताब वह एक अध्याय, उहदे चों तुहानूं पता लगेगा गिनती किहड़ियां लोकां दी कीती जांदी सी उस समय दे विच। उहदे 2 और 3 वचन नूं पढ़ूंगा। जदों याद रखो इजरायलियां दी जनगणना होई हैगी आ, इजराइल के लोगों को जो मिस्र के विचों बाहर कढ़ लिया हैगा आ, और उस समय की उन्होंने जनगणना जिहड़ी आ पहली जनगणना लिखा गया। इजरायलियों के मिस्र से निकल जाने के बाद दूसरे वर्ष दूसरे महीने के पहले दिन को यहोवा ने सीने में जंगल में मिलाप वाले तंबू में मूसा से कहा, इजरायलियों की सारी मंडली के कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार एक एक पुरुष की गिनती नाम लेकर करना, और जितने इजरायली बड़े धन जितने इजरायली 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के हो और जो युद्ध करने के योग्य हैं वो सबों को उनके दलों के अनुसार तू हारून को गिन ले। गिनती किन्ना दी होनी? सिर्फ बंदियां दी। और किहड़े बंदियां दी? जेड़े 20 साल दे जां उहदे तो उपर हैगे आ। इहदा मतलब 20 साल तो जेड़े थल्ले आ औरतां आ बच्चे उन्हां दी कोई भी गिनती नहीं हैगी। और इस जगह ते की लिखिया? रोटियां किते कोल मिलियां हैगियां? एक बच्चे दे कोलों। इहदा मतलब सभा दे विच बच्चे भी पहुंचे। जे बच्चे पहुंचे तो औरतां भी जरूर पहुंचियां है, क्योंकि मां तो बिना याद रखो बच्चे भी उत्थे नहीं मिलणगे। तुहानूं जिहड़ी गिनती लई जाती हैगी सी वो 20 साल जो तो उपर दी हुंदी सी। अज के समय हो सकता वध असीं उम्र के बंदे की गिनती करते, पर प्रभु यीशु मसीह के समय परमेश्वर के समय के विच जदों प्रभु यीशु मसीह उस समय तक यह सिस्टम चल रहा सी कि युद्ध वास्ते सिर्फ जिहड़े बंदे तैयार सी उन्हां दी गिनती लई जाती सी कि युद्ध कर सकन। औरतां दी गिनती नहीं सी हुंदी। औरतां दी गिनती नहीं, क्योंकि औरतां युद्ध कर नहीं चाहदियां हैगियां। हालेलुया। याद रखो कि प्रभु यीशु मसीह की नहीं कर सकते साडे वास्ते। इत्थे लिखिया 12 टोकरे जिहड़े आ वो बच गए। ये काम जिहड़ा प्रभु यीशु मसीह ने इस जगह ते कीता हैगा, इस पूरी दुनिया दे विच इस पूरी सृष्टि दे विच बिना प्रभु यीशु मसीह तो कोई नहीं जे कर सकता। बिना प्रभु यीशु मसीह तो यह काम कोई भी नहीं कर सकता।
ये याद रखो 5000 लोगों को खाना खवाना ये काम कोई होर नहीं कर सकता। कर सकते आ पर किदां कर सकते आ? मुल लैके लखां बंदियां नूं खवाया जा सकता। मुल लैके की गया लखां बंदियां नूं खवाया जा सकता। पर स्वर्ग दे उत्तों सिर्फ प्रभु यीशु मसीह खवा सकते हैं। स्वर्गी रोटी कौन दे सकता है? प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं। ये नहीं जे कोई होर दे सकता। याद रखो ये तो सानू ये पता लगता है कि परमेश्वर दे वास्ते कोई भी काम, हाँ कोई काम वड्डा नहीं जाएगा, कोई काम वड्डा नहीं जाएगा। ये तो गल हैगी हुण सानू की करना चाहिए? सानू की करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह ने तो अपना काम किया पर सानू की करना चाहिए हैगा? सब तो पहली गल जो कुछ तुहाडे कोल आ पहला उन्होंने इस्तेमाल करो। जो कुछ किया तुहाडे कोल आ उन्होंने इस्तेमाल करो। हो सकता उस समय वो बच्चा भी सोचता कि मेरे को तो अगे पहलियां ही 5 हैगियां, मेरे को तो होर कुछ है ही नहीं। और बच्चे के कोलों रोटी चीज़ लैनी सौखी आ? तुहानू की लगता किसी बच्चे के कोलों लैना सौखा आ? है एक बारी फड़ा दो, ये दोबारा तुहाडे हत्थ च भी दे जे चीज़ ते दे सकते आ? नहीं देंदे हैगे। वो रोणगे कि मेरे कोलों को लै ली वापस, ये तो मेरा आ। और जो बच्चे को यह पता हो कि किसी होर कोलों कुछ है ही नहीं है। हालेलुया। है ना, उन्हें कहना अपनियां मुकालियां मेरे दुआले हो गए हाँ, और किसी को कुछ है ही नहीं, वो कभी नहीं देगा। पर फिर भी याद रखो उस बच्चे ने की किया हैगा आ, वो दे दिता हैगा। जो कुछ तुहाडे कोल आ उन्होंने बड़ा वधिया तरीके नाल इस्तेमाल करो। परमेश्वर जे तुसी प्रभु लई इस्तेमाल करोगे तो परमेश्वर तुहाडियां चीज़ां नूं सही तरीके नाल इस्तेमाल करेगा। ये साडा पहला काम हैगा। पहला काम हैगा कि जो तुहाडे कोल उहनूं इस्तेमाल करना। असीं कदी कदी प्रभु दे काम लई नहीं दे सकते पर दूजियां कामां लई दे सकते हैं। कि प्रभु दे काम लई सब तो पहला ये तैयार रहना चाहिए हैगा। अपने नाल दे दसो प्रभु दे काम लई हमेशा तैयार रहो। हाँ याद रखो। हुण दूसरी गल हैगी कि जो तुहाडे कोल हैगा उहनूं देण लई भी तैयार रहो। पहला तो असीं इस्तेमाल करना आ, जो कुछ साडे कोल उहनूं इस्तेमाल करना। और दूजी गल हैगी आ कि जो कुछ तुहाडे कोल उहनूं देण वास्ते तैयार रहो। चेले सोचते होणगे उस समय ये थोड़ा आ, पर प्रभु ने ये नाल नहीं, प्रभु ने कि जो तुहाडे दे तुहानूं वधा सकदा आ, जो कुछ तुहाडे कोलों वध सकदा आ, पर सब तो पहला असीं इहनूं देण वास्ते तैयार रहीए। और तीसरी गल सानूं जिहड़ी करनी चाहिदी हैगी परमेश्वर दे हुक्म नूं मनना। हुक्म नूं मन लेना ये छोटी गल नहीं सी हैगी। जो उन्होंने वेख्या कि सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां उन्होंने कहा लाइनां च बिठा दो, आग्याकारी की, हुक्म नूं मन्निया, लोगों नूं बिठाउणा शुरू कर दिता। ये साडे अंदर भी एक गुण होना चाहिए कि असीं लोग उदां ही करिए जो प्रभु के हुक्म दे विच हैगा आ। जे तुसीं नहीं करदे, क्योंकि वचन दे विच याद रखो लाइनां दे विच बैठ के प्रभु दे कोलों उन्होंने भी बरकत प्राप्त की हैगी। आग्याकारी हैगी ये भी कि जे लाइनां च गल लाइनां दे विच उस समय बैठ गए हैगे आ। परमेश्वर दे याद रखो परमेश्वर दे वास्ते जो कुछ संसार दे वास्ते कठिन आ वो परमेश्वर दे वास्ते आसान हो जाता है। प्रभु दे वास्ते कुछ भी मुश्किल नहीं। चेलियां नूं लगदा सी थोड़ा हैगा आ, पर आग्याकारी की ते प्रभु ने उन्होंने भी सब नूं वधा दिता हैगा। और चौथा काम जिहड़ा हैगा बहुत ही ज़्यादा याद रखो मनण दे योग हैगा जी। चौथा काम हैगा आ कि जदों तुहानूं बरकत मिलदी हैगी आ उन्होंने बर्बाद ना करो, उन्होंने बर्बाद ना करो। वचन च लिखा बचे होए दे विचों 12 टोकरियां भरियां। प्रभु ने नहीं कहा बाकी रहन दो, सुट दो इत्थे। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਬਰਕਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਫਟਾਫਟ। ਇਹ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਆ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।